Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is assault and battery under tort law. In the course of the today's video, we will understand the concept of assault and battery under tort as well as the essential elements to prove the assault and battery. Furthermore, we will be looking forward the defenses for assault and battery followed up by the remedies which are available for assault and battery with the help of certain case laws. Now without further ado, let's look into the PPT. Now we have jumped into the PPT assault and battery. This particular PPT has been divided into three parts. In the first part, we will be looking forward to the introduction of the topic as well as we will understand what is the difference between assault and battery. In the second part, we will be looking at the meaning of the assault, essentials of the same, followed up with the defenses and remedies for assault and certain case laws. Whereas in the third part, we will be looking forward the meaning of battery, essential elements of the same and defenses and the remedies. First part is the introduction. Any injury may be caused due to variety of reasons when a wrongful act is done on purpose which in turn causes an injury. It is said to be an intentional tort. This particular type of tort contains various wrongful acts such as trespass, assault and battery. Assault and battery are highly connected. They are like two sides of a coin. These are the most confusing terms that exist in both tort law and criminal law. There are few countries where both assault and battery have merged into one crime and others where both are treated as separate offenses. यहाँ पे क्या बोला गया है that in certain countries assault and battery को जो है वो separate रखते हैं, जैसे कि in the country like USA assault and battery both are separate offenses, whereas in India assault और battery को हम एक ही मानते हैं under the Indian Penal Code 1860. इसका एक बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट किसी बंदे को मारने का प्रयास करना, उसके लिए आप हाथ उठाते हो या लाठी उठाते हो, उस मैर प्रिपरेशन को हम असॉल्ट बोलेंगे. जैसे ही वो हाथ या वो लाठी दूसरे पर्सन को टच करती है, वहाँ पे हार्म होता है सामने वाले को या कोई इंजरी होती है, उस चीज़ को हम बैटरी मानेंगे. ये है उनका बेसिक डिफरेंस. आइए इन चीज़ों को थोड़ा डीप मीनिंग में समझते हैं. सबसे पहला है असॉल्ट. असॉल्ट इज़ एन अटेम्प्ट टू कमिट बैटरी. जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जैसे ही आप लाठी उठाते हो या हाथ उठाते हो तो उस चीज़ को हम असॉल्ट बोलेंगे. Whereas battery includes an intentional application of force to another person without any lawful justification. बैटरी में भी जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जैसे ही आप वो लाठी को उठा के या हाथ को उठा के सामने वाले बंदे को टच करते हो, अपना फोर्स यूज़ करते हो विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो उस चीज़ को हम बैटरी मानेंगे. थ्रेट ऑफ वायलेंस इज इनफ फॉर असॉल्ट. कि जैसे ही आप कोई थ्रेट इम्प्लिक्ट करने का ट्राई करते हो तो उस चीज़ को हम असॉल्ट मान लेंगे कि जहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी नहीं है. वेयर एज इन बैटरी फिजिकल कांटेक्ट एस्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. असॉल्ट क्रिएट अ रीजनेबल एप्रीहेंशन इन द प्लेंटिव्स माइंड दैट इमीडिएट फोर्स विल बी. उसकी यहाँ पे सामने वाले बंदे के दिमाग में एक चीज़ बैठा दी जाती है, एक चीज़ का एक फियर क्रिएट किया जाता है कि अभी उसके ऊपर कोई फिजिकल फोर्स यूज़ होगा. वेयर एज इन बैटरी हम लोग एक्चुअल में वो फिजिकल फोर्स यूज़ करते हैं, दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन. असॉल्ट के अंदर वी थ्रेट अ पर्सन, वेयर इन बैटरी वी कॉज हार्म अ फिजिकल इंजरी टू अ पर्सन. नीचे भी सेम चीज़ अलग वर्ड्स में मेंशन की है दैट असॉल्ट शुड नेवर बी अ फिजिकल एक्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता. वेयर एज बैटरी मस्ट बी फिजिकल, कि वहाँ पे एक फिजिकल कांटेक्ट एस्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आते हैं असॉल्ट के ऊपर. In common law, assault is a tort, an act of the defendant which causes the plaintiff reasonable apprehension of the infliction of battery on by him by the defendant. When the defendant creates his act by apprehension in the mind of the plaintiff, he is going to commit battery against the plaintiff. The wrong of assault is completed. यहाँ पे ये बोला है कि जैसे ही सामने वाले बंदे के दिमाग में एक डर आप पैदा करते हो कि उसको अभी कोई चोट होने वाली है या उसके ऊपर कोई फिजिकल फोर्स यूज़ होने वाला है, उस चीज़ को हम असॉल्ट मानेंगे. द रॉन्ग कंसिस्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू डू हार्म रादर देन द हार्म बीइंग कॉज्ड देयरबाय. इन असॉल्ट चार्जेस मस्ट इंक्लूड कंडक्ट दैट इज ऑफेंसिव, विच इज ऑफेंसिव और कॉजेस अनदर पर्सन to the fear of their safety. This clearly means that
one can be guilty of assault even if he or she did not physically harm the victim. यहाँ पे भी वापस से वही चीज़ बोली है कि अगर किसी बंदे को हम फिजिकली इंजरी पहुंचाते नहीं हैं बट उसके दिमाग में हम एक ये डर खड़ा करते हैं कि अभी मैं आपको मारने वाला हूँ, या फिर कोई थ्रेट खड़ा करते हैं उनके सेफ्टी के लिए, तो उस चीज़ को हम असॉल्ट मानेंगे. ठीक है. एन एक्ट डन बाय वन पर्सन विथ विच कॉजेज एंड इज intended to cause to another an apprehension of an immediate and harmful or offensive touching or connect with his person is an assault. ये एक हल्की सी डेफिनेशन दी गई है जो आप अपने एग्जाम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चीज़ के लिए आपको हमारी वेबसाइट जुडिशियल ड्रीम के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव आंसर भी मिल जाएगा. प्लीज़ आप वो ऑलवेज चेक करते हैं, वहाँ पे डेली अपडेट्स होते हैं. ठीक है. In Lewis versus Hoover, the court says an assault is an attempt or offer with violence to do a corporal hurt to another, as if lifts up his cane or fist at another in a threatening manner, or strike at him with a stick, his fist or any other weapon within striking distance, but miss him. यहाँ पे केस में क्या बोला गया है कि अगर आप लाठी को उठा के एक्चुअल में या फिर अपना हाथ उठा के किसी बंदे को मारने का प्रयास करते हैं, अगर आप वो मारने की प्रक्रिया के अंदर आप मिस हो जाते हैं, आप उनको टच नहीं कर पाते, तो इस चीज़ को हम असॉल्ट ही मानेंगे. ठीक है. बैटरी इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाएगा, इवन तो आपने यहाँ पे फिजिकल फोर्स किया गया था, आपने यूज़ किया था, बट फिर भी यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इस चीज़ को हम अभी भी असॉल्ट ही मानेंगे. इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. पहला है एन एक्ट और कंडक्ट इंटेंडेड टू क्रिएट एट अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट हार्म. ये 3 चीज़ें इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है. आइए इनको थोड़ा डीप मीनिंग में समझते हैं. एन एक्ट और कंडक्ट इंटेंडेड टू क्रिएट. टू प्रूव अ क्रिमिनल अटैक द डिफेंडेंट्स बिहेवियर मस्ट बी मोटिवेटेड टू क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ फियर और डेंजर इन द विक्टिम्स माइंड. यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी ऐसा डेंजर या फियर आपको विक्टिम के दिमाग में खड़ा करना है कि अभी उसके ऊपर कुछ ख़राब चीज़ें होने वाली हैं. यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की है कि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उस चीज़ को हम असॉल्ट नहीं मानेंगे. जैसे कि एक्स और वाई के बीच में कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रही है. ठीक है. एट द सेम टाइम एक्स ने अपने स्लीव्स रोल अप करना शुरू किए. अभी वहाँ पे वाई को ऐसा भी लग सकता है कि ये अभी अपने स्लीव्स को फोल्ड कर रहा है, ऊपर चढ़ा रहा है, तो ये मुझे भी मारेगा. बट एक्चुअल में एक्स को वहाँ पे खुजली आ रही थी, इसलिए वो खुजलाने के लिए उसने वो स्लीव्स को फोल्ड किया था. ठीक है. तो ऐसे एक्सीडेंटल थिंग्स को हम असॉल्ट नहीं मान सकते. रीजनेबल एप्रीहेंशन. फर्दर द विक्टिम मस्ट रीजनेबली बिलीव दैट द डिफेंडेंट्स कंडक्ट विल हार्म और ह्यूमिलिएट हिम. कि या तो उस बंदे को ह्यूमिलिएट किया जाएगा या तो उसके ऊपर कोई फिजिकली इंजरी इम्प्लीकेट की जाएगी, तो उस चीज़ को हम असॉल्ट मानेंगे. द विक्टिम मस्ट अंडरस्टैंड द डिफेंडेंट्स पोटेंशियली हार्मफुल और ऑफेंसिव एक्ट्स. कि विक्टिम को वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि डिफेंडेंट अभी कुछ करने वाला है ऑफ इमिनेंट हार्म. तीसरा एसेंशियल ये है दैट विक्टिम फियर मस्ट बी डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द थ्रेट दैट इज इमिनेंट. इमिनेंट का मतलब ये होता है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए. जैसे कि पहले के 2 एसेंशियल है कि पहले में हम ऐसा कुछ एक्ट करते हैं कि हम लोग पीछे जाके उनको मारेंगे. दूसरी चीज़ कि हम उनके दिमाग में एक फियर खड़ा करते हैं कि अभी उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है. तीसरी चीज़ कि वो हार्म की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए. ऐसा नहीं कि यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया है कि आई विल बीट यू टुमारो. मैं आज आपके सामने गुस्सा दिखाता हूँ, आंखें चौड़ी करके बातें करता हूँ, स्लीव्स फोल्ड करता हूँ. ठीक है. उस चीज़ से मैं आपके दिमाग में डर पैदा करता हूँ, लेकिन फिर मैं ऐसा बोलता कि मैं तुम्हें कल मारूंगा. तो ये असॉल्ट नहीं है. वो पूरा का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए, तो ही वो असॉल्ट माना जाएगा. यहाँ पे केस लॉ है फगन वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर द मेट्रोपोलिस. यहाँ पे कैसा था कि फगन एक कार के अंदर बैठा हुआ था. एट द सेम टाइम एक पुलिस ऑफिसर ने आके उनको बोला कि आप प्लीज़ यहाँ से कार हटा लीजिए. फगन ने वो कार घुमाई और पुलिस वाले के पैर पे चढ़ा दी. ठीक है. द ऑफिसर फोर्सफुली आस्क्ड हिम टू रिमूव द कार फ्रॉम हिज लेग, कि उन्होंने कार हटाने के लिए फगन को बोला, बट फगन ने बोला दैट कि वो वहाँ से गाड़ी नहीं हटाएगा और उसने कार बंद कर दी. यहाँ पे फगन वॉज कन्विक्टेड फॉर असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी. लेटर ऑन फगन ने एक अपील फाइल की हायर कोर्ट के अंदर, जहाँ पे इवन दो
assault is an independent crime and treated to be such. For the practical purpose today, assault is generally synonymous with battery. कि यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि वैसे तो assault एक different crime है, but assault और battery को हम लोग साथ में लेके चलते हैं. यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि फगन ने वो जो कार घुमाई और पुलिस ऑफिसर के पैर पे चढ़ाने का जो प्रयास किया, उस चीज़ को हम असॉल्ट मानेंगे, जिस वजह से उसके दिमाग में एक इमिनेंट हार्म क्रिएट हुआ, एक फियर क्रिएट हुआ. ठीक है. जैसे ही फगन ने वो कार का टायर पुलिस वाले के पैर पे चढ़ा के गाड़ी बंद की, उस चीज़ को हम बैटरी मानेंगे. फगन का कन्विक्शन अपहेल्ड हुआ था बिकॉज वहाँ पे एक्ट्रेस रिया एंड मेंस रिया दोनों प्रेजेंट थे. गिल्टी माइंड एंड गिल्टी इंटेंशन बोथ वर प्रेजेंट. आर वर्सेस कॉस्टांजा. यहाँ पे कैसा था कि एक बंदा अपने एक्स कलीग को डेली फॉलो करता था, उसको फ़ोन कॉल्स करता था. ठीक है. उसको 800 जितने लेटर्स लिखे थे, काफ़ी सारे लेटर्स अब्यूजिव लैंग्वेज में थे, ऑफेंसिव थे, जिस वजह से वो एक्स कलीग को क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया. तो इस एक्ट को भी कोर्ट ने असॉल्ट ही माना था. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपने एक फिज़िकल फोर्स यूज़ करने के लिए एक एक्ट क्रिएट किया कि आप ऐसे ऐसे हो, आप वैसे वैसे हो. सेकेंडली, उस चीज़ की वजह से विक्टिम के दिमाग में डर पैदा हुआ कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है. तीसरी चीज़ दैट इज़ इमिनेंट हार्म, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूअस था. वो डेली उसको फॉलो करता था. दैट मीन्स ही वॉज टॉकिंग हर. न्यूमरस साइलेंट फ़ोन कॉल्स, मतलब वो डेली उसको फ़ोन करके हरास भी करता था. साथ में उसके घर के आजू बाजू में गाड़ियाँ लेके घूमता था. उसके घर पे विदाउट कंसेंट पहुँच के कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स लिख देता था. ये सब चीज़ें प्रूव करती है दैट इवन दो उसने कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं किया है, इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ असॉल्ट. ओके. उसके बाद आते हैं उसके 4 डिफेंसेस हैं कि आपने जो भी दिखाया असॉल्ट के अंदर, वो या तो सेल्फ डिफेंस में था, या तो आप इंटॉक्सिकेटेड थे, या तो इट वाज अ कोवर्जन कि आपको किसी ने फोर्स किया था कि आप असॉल्ट कीजिए, या तो फिर लैक ऑफ प्रूफ. सेल्फ डिफेंस में यही रहेगा कि सामने वाले बंदे ने आपके ऊपर असॉल्ट करने का या बैटरी करने का ट्राई किया, इसलिए आपने भी सामने ऐसी कुछ एक्शंस किए जिस वजह से उसको भी, उसके सामने भी असॉल्ट का आपने क्राइम किया. बट टेक्निकली दैट वाज अ सेल्फ डिफेंस. वेयर इंटॉक्सिकेशन की आप नशे की हालत में हैं, वॉलंटरीली या इनवॉलंटरीली, वो बात का सवाल है, वो कोर्ट का लुकआउट है. तो उस चीज़ को भी हम डिफेंस पे ले सकते हैं. वेरे स्कोर्स में मतलब आपको फोर्सफुली किसी ने बोला कि आप ये सब कीजिए. लैक ऑफ प्रूफ, दैट इज़ अल्टीमेटली लैकिंग ऑफ लॉ और लैकिंग ऑफ एविडेंस की, जिसकी मदद से कि आप कोर्ट को जाके ये बोल सकते हैं कि क्या प्रूफ है कि मैंने एक्चुअल में असॉल्ट कमिट किया या मैंने किसी एक बंदे को मारने का प्रयास किया है. ठीक है. उसके बाद यही सब चीज़ें यहाँ पे एलाबोरेट की गई है दैट सेल्फ डिफेंस, इफ द डिफेंडेंट वॉज एक्टिंग आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस दे शुड ओनली बी अमाउंट टू डिस्प्ले फोर्स दैट इज अप्रोप्रिएट, कि आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट का सेल्फ डिफेंस यूज़ करना है. इंटॉक्सिकेशन, कि कुछ जगह पे इंटॉक्सिकेशन कैन बी ए लीगल डिफेंस. ठीक है. अगर वो चीज़ आपकी एबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है तो. कोर्जन का मतलब है कि आपको गन पॉइंट पे रख के बोला गया है कि आप किसी के सामने असॉल्ट कीजिए. लैक ऑफ प्रूफ मतलब अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं, तो इस चीज़ को भी हम एज अ लीगल डिफेंस यूज़ कर सकते हैं. नाउ डैमेजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डैमेजेस. ठीक है. मतलब रेमेडीज समझ लेते हैं कि 2 टाइप के यहाँ पे हमको रेमेडीज़ मिल सकते हैं. पहला है डैमेजेस, जो कि हम लोग डिफेंडेंट से क्लेम कर सकते हैं कि आपने ये सब काम किया, उस वजह से आपको हमें इतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. वेयरएज रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, इसका डायरेक्ट मीनिंग ये होता है यू मे हैव द बॉडी. अंडर आर्टिकल 32 वी कैन फाइल दिस पर्टिकुलर रिट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट फॉर हाई कोर्ट्स, कि जिसकी मदद से हम लोग कोर्ट में जाके बोलते हैं दैट सो एंड सो पर्सन हैज़ बिन मिसिंग, इसका अता पता नहीं है, पुलिस वाले ने इसको अरेस्ट किया है नहीं किया है वो हमें नहीं पता, और अगर ले किया भी है तो कहाँ लेके गए वो भी हमें नहीं पता. तो कोर्ट से दरख्वास्त है कि आप इस बंदे को हमारे सामने खड़ा कीजिए. इसे बोलते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. उसके बाद आ जाते हैं बैटरी के ऊपर. Purposely touching or applying force on other persons or things related to person without his consent with the intention to harm the person is known as battery. It is only considered when there is an actual physical contact without the consent of the person to harm the person,
Generally, assault is followed by the battery, which is the reason assault and battery are mostly used together. यहाँ पे हम ऐसा समझ लेते हैं कि अगर कहीं पे असॉल्ट हुआ है तो वहाँ पे बैटरी हुई होगी, वो नेसेसरी नहीं है. बट जहाँ जहाँ भी बैटरी का ऑफेंस हुआ है वहाँ पे असॉल्ट डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि असॉल्ट जैसे ही फिनिश होता है बैटरी वहाँ से स्टार्ट होता है. जैसे वापस से अगर हम लोग एक्स एंड वाई का एग्जांपल रिविजिट करें कि जैसे ही एक्स ने हाथ उठाने का ट्राई किया तो वो मेरे प्रिपरेशन दिखाना असॉल्ट होगा. जैसे ही उसका हाथ वाई के गाल पे टच होगा तो उस चीज़ को हम बोलेंगे बैटरी, कि जहाँ पे एक्चुअल में फिजिकल कांटेक्ट हुआ है और एक बंदे को कुछ इंजरी आई है. इसके 5 एसेंशियल्स हैं. सबसे पहला हमें प्रूव करना पड़ेगा इंटेंशन की, जो डिफेंडेंट था उसने ये एक्ट इंटेंशनली किया था. सेकेंडली कि यहाँ पे एक फिजिकल कांटेक्ट हुआ था, कि दोनों बंदों के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा हमें. तीसरी चीज़ होगी हार्म, कि प्लेंटिफ को एक फिजिकल इंजरी या किसी भी प्रकार का हार्म या ह्यूमिलिएशन फेस किया है उन्होंने. फोर्थ थिंग वुड बी नो कंसेंट, कि प्लेंटिफ ने यहाँ पे कोई भी प्रकार का कंसेंट नहीं दिया था इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. कि जैसे एक्स एंड वाई का एग्जांपल वापस से हम लोग ले, कि जब एक्स ने उसे चाटा मारने का ट्राई किया तब वाई ने बोला कि मेरे साथ ये सब चीज़ें मत करो, आई एम नॉट कंसेंटिंग टू दिस. फिर भी अगर ये सब चीज़ें होती तो उस चीज़ को हम बैटरी मानेंगे, जो कि हमें कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा. एंड ये पर्टिकुलर एक्ट करने का कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए. जैसे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको लीगली अरेस्ट करने के लिए आ रहा है, आप वो चीज़ रेजिस्ट करते हो, इन डूइंग दैट पुलिस वाला एक फिजिकल फोर्स का यूज़ करता है जिससे आपको हल्की सी चोट आ जाती है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोर्ट में जाके कि पुलिस ऑफिसर ने मेरे ऊपर बैटरी का ऑफेंस कमिट किया है. वो उनकी ड्यूटी निभा रहे थे, वाइल आपको पीसफुली अरेस्ट होना था, आपने वो होने नहीं दिया. तो थोड़ी बहुत इंजरी आएगी तो उस चीज़ का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बैटरी का ऑफेंस बन जाएगा. यहाँ पे कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो ही उस चीज़ को हम बैटरी मानेंगे. उसके 4 डिफेंसेज है. सबसे पहला है सेल्फ डिफेंस, कि आपने जो भी एक्ट किया वो एक अप्रोप्रिएट सेल्फ डिफेंस था. ठीक है. दूसरी चीज़ होगी कि वो कंसेंटफुल एक्ट था. डिफेंस ऑफ अदर्स. डिफेंस ऑफ अदर्स में क्या बोला है कि जैसे आप खुद का डिफेंस करते हो वैसे आप किसी और बंदे का डिफेंस करने का ट्राई करते हो, तो उस चीज़ को भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी का ऑफेंस नहीं है. डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी बचाने का कुछ ट्राई करते हो, किसी और की प्रॉपर्टी बचाने का कुछ ट्राई करते हो, तो इन डूइंग दैट आप किसी के ऊपर फिजिकल फोर्स यूज़ करते हो जिससे उनको हार्म होता है, तो उस चीज़ को हम बैटरी नहीं मानेंगे. इसकी 3 रेमेडीज़ हैं. सबसे पहली है लीगल रेमेडीज़, कि जहाँ पे आप कोर्ट के अंदर केस फाइल करके आप वहाँ से कॉम्पनसेशन ले सकते हो, या तो सामने वाले को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के थ्रू पनिशमेंट दिलवा सकते हो. दूसरा है रेस्टिट्यूशनरी रेमेडीज़. रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को पहले जैसे स्टेज में वापस लाना, कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर डैमेज किया है तो उस चीज़ को रेस्टिट्यूट करना, मतलब वो चीज़ अर्लीस्ट स्टेज में जैसे थी उस हिसाब से उसको रिपेयर करके देना या रिप्लेस करके देना. ठीक है. फिर आते हैं इक्विटेबल रेमेडीज़, की जहाँ पे जो हार्म इन्फ्लिक्ट हुआ है उस चीज़ को हम मॉनेटरी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते. वैसे सब सिनारियोस के अंदर इक्विटेबल रेमेडीज़ मिलेंगी. जैसे कि कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हो गया, कि जो डिफेंडेंट है वो इतने एरिया में आपसे इतनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी इक्विटेबल रेमेडीज़. ठीक है. By this slide, our lecture is effectively over, and I would like to thank you all for listening to this lecture very peacefully. If you guys have any questions, please visit our website judicialdream.com and try and connect to us with our Instagram channels and YouTube, as well as Telegram channels, through which you will get daily updates about these kind of free legal series, as well as you will find a lot of descriptive answers on many subjects and many topics, followed up with certain MCQs for which you can take your own mock tests. Once again, I would like to thank you all. Thank you very much and have a good day.